بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، سیاست، حکومت کے مسائل، اپوزیشن کے مسائل، ان کا تذکرہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، اور اس وقت ویسے بھی ملک جن کرائسس کا شکار ہے، یہ ڈے ٹو ڈے ایونٹس جو ہیں یہ خصوصی کوریج کا موضوع بنتے رہتے ہیں۔ ایوان سچ کے پروگراموں میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم خاص طور پر پنجاب حکومت کے اس اقدام کا ذکر کریں گے جو انتہائی اہمیت کا حامل اقدام ہے۔ پنجاب حکومت اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب نے جو اقدام اٹھایا ہے، یہ پنجاب کے محکمہ صحت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے دور رس نتائج نکلیں گے اگر اس اقدام پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیا ہے عمل درآمد ہو گیا اس کی روح کے مطابق، جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چاہتے ہیں، تو پنجاب میں ادویات جو ہیں محکمہ صحت کے حوالے سے چونکہ یہ اقدام ہے، تو پنجاب میں جو ادویات ہیں ان کی قیمتیں بڑی کم ہو جائیں گی۔ سرکاری سطح پر ہسپتالوں میں جو ادویات کی جو اس وقت فراہمی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، عام آدمی کو ادویات نہیں ملتی، وہ ادویات ملیں گی۔ سرکار کا جو بڑا لمبا چوڑا بجٹ ادویات کی خریداری پر خرچ ہوتا ہے، اس میں واضح طور پر کمی آئے گی اور زیادہ سے زیادہ ادویات مریضوں کو مل سکے گی۔ یہ اقدام کیا ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ جو اقدام اٹھایا، یہ ایک لیٹر لکھا ہے انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نام۔ لیٹر نے تہلکہ مچا دیا ہے محکمہ صحت میں۔ اس لیٹر پر اگر جس طرح اس میں ڈائریکشن دی گئی ہے محکمہ صحت کو، اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا تو اس سے نہ صرف بہت بڑی ماضی میں ہونے والی چوری پکڑی جائے گی، بہت بڑی کرپشن پکڑی جائے گی، بلکہ آئندہ کے لیے محکمہ صحت جو ہے اس کی راہیں، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی۔ اس خط کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر آج بات کریں گے، پھر بعد میں ذکر کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس خط میں، اس لیٹر میں کیا لکھا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شہریار صاحب۔ ڈاکٹر شہریار صاحب سے جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیٹر لکھا ہے محکمہ صحت کو، اس لیٹر کے کنٹینٹ کا تو بعد میں جائزہ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، پہلے یہ بتائیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ لیٹر کیوں لکھا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں انیف صاحب، بیک گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی ساری ایک سیریز آف پروگرامز کیے کہ جو ادویات میں مبینہ طور پر ایک کرپشن ہو رہی ہے، جو کوالٹی میڈیسن کے نام پر جو ہے وہ دوائیاں خریدی جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہم نے پروگرامز کیے، ہم نے کافی شور مچایا کہ جی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نیب میں انکوائری چلی، اور وہ انکوائری میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، کس طرح آپ سچ ٹی وی کے ان پروگراموں کا ذکر کر رہے ہیں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سرکاری سطح پر ادویات کی خریداری میں کس طرح وسیع پیمانے پر جو ہے کرپشن ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پر اس ٹینیور میں جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، 2016 سے لے کر آنورڈ جو تھا، اس ٹینیور میں یہ خریداری میں بے ضابطگیاں ہوئی، کرپشن ہوئی، اور اس کرپشن کو ہم نے بڑے کھل کے بے نقاب کیا تھا، اور اس کے بالکل اس کی جزیات تک کا ذکر کیا تھا ہم نے۔ بالکل، ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ود پروف اور سارے پراپر کیلکولیشن کے ساتھ ہم نے پروگرام میں اپنے بتائیں، اور انہی کے بعد یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ نے اس چیز کا نوٹس لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس جو پروکیورمنٹ آف میڈیکیشن ہے اس میں تو بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ کرپشن اس کو لیگلائز بھی کر دیا گیا، اور ان اداروں کو انہوں نے بے وقوف بھی بنا لیا، ڈیفرنٹ قسم کی جو فیک انفارمیشن ہے کوالٹی میڈیسن کے نام پہ وہ کر کے، تو اس کے بعد یہ لیٹر جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ایکشن سے پہلے اس پہ نیب نے ایکشن لیا، پہلے نیب نے ایکشن لیا تھا، اور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا تھا۔ بالکل، نیب کو تو جن لوگوں نے یہ سارا کچھ ڈرامہ کیا تھا، جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، انہوں نے نیب کو تو بیوقوف بنا لیا، نیب کے سامنے ایسی ایسی ٹیکنیکل چیزیں رکھی کہ وہ بے بس ہو گئے، اور انہوں نے تو پھر یہ فائل ہی کہیں رکھ دی کہ اب اس پہ کیا بات ہو۔ دیکھیں اس میں انہوں نے نیب، اب آپ کو پتا جب نیب نے یہ انکوائری کرنا شروع کی تو چونکہ نیب والے تو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ دواؤں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، اگر اس نے کوئی ایک ٹیبلٹ بھی یا ایک کسی کو ایک چیز بنانے کا بھی لائسنس دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کمپنی نے، اس بنانے والے ادارے نے، اس مینوفیکچرر نے ریپ کے ایس او پیز کو، اس کے پری ریکوزٹس کو پورا کیا ہے، تو ان کو وہ سرٹیفیکیشن ملی کہ آپ اس کی مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ہم ذرا اپنے ناظرین کو یاد بھی کرائیں کہ ہم نے پروگراموں میں کیسے اس کا ذکر کیا تھا، کیا کہا تھا، تو پروڈیوسر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ذرا وہ ہماری بات سنائیں جس میں ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا، اور ایوان سچ کے پروگراموں میں سچ ٹی وی پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا تھا۔
हर कंपनी को ये तरीकाकार फॉलो करना पड़ता है, उसे लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी सर्टिफिकेशन होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, इन तमाम मराहल से गुजर कर दवाई जाती है। क्वालिटी के नाम पे ये जो सेफ्ट्राइऑक्सिन इंजेक्शन है, ये 21 रुपए से लेकर 23 रुपए तक 7 साल तक शहबाज शरीफ की हुकूमत ही खरीदती रही, और अगले 3 साल यही 23 रुपए वाला इंजेक्शन जो है वो 79 रुपए का भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने खरीदा। सब स्टैंडर्ड में जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग है उस पर पंजाब असम्बली से कवानीन पास करवाए। आपको पता है पंजाब असम्बली के बाहर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लोगों ने धरना दिया। डॉक्टर साहब, आपने सुना कि ये थोड़ी सी बात हमने सुनाई, जिस तरह हम इस प्रोग्राम में हाईलाइट करते रहे इस इशू को। सबसे पहला तो ये इशू था कि गवर्नमेंट सेक्टर में पंजाब में जो अद्वियात की खरीदारी है उसका एक तरीकाकार था 2015 तक, जिसको फॉलो किया गया, जैसा कि आप जानते हैं। और उसमें यह था कि तमाम कंपनीज, चाहे वो मल्टीनेशनल थी, नेशनल थी, जो भी ड्रैप से रजिस्टर्ड कंपनी थी जिसको ड्रैप ने अप्रूव किया हुआ था, वो टेंडर में हिस्सा लेती थी और कंपटीशन में आके अद्वियात सस्ते दामों हॉस्पिटल खरीदते थे, जिसकी वजह से आम आदमी को भी हॉस्पिटल से अद्वियात मिल जाती थी। उसके बाद ये वारदात जो है डाली गई, ये सारी 2016 से ऑनवर्ड। 2016 में क्या हुआ था, आप जरा डिटेल से बताइए। सर, 2016 में हुआ ये था कि अब देखें, क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे इन्होंने काम शुरू किया जी कि हमें क्वालिटी मेडिसिन प्रोक्योर करेंगे। तो अगर चंद एक कंपनियां जिनको नवाजने के लिए कानून बनाया गया कि जी इतने अरब की सेल होगी कंपनी की, 200 करोड़ की शर्त, 200 करोड़ की शर्त होगी, इस कंपनी की 200 करोड़ की सेल होगी, वही कंपनी जो है वो कंपटीशन में आ सकती है, दूसरी कंपनी कंपटीशन में नहीं आ सकती। देखें, इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी 2 करोड़ से कम सेल है वो सब स्टैंडर्ड दवाई है। इन्होंने पहला तो जो पैरामीटर रखा वो सेल के ऊपर रखा। इस पे भी बड़ा डिटेल के साथ बात की थी कि ये 200 करोड़ की शर्त क्यों रखी गई। ये इसलिए रखी गई थी कि कुछ जो स्टेक होल्डर्स थे, कुछ जो कंपनियां थी, उनको बेसिकली नवाजने के लिए ये कानून साजी की गई। पेपरा रूल्स में ये कुछ तरामीम की गई, और ये जो शर्त थी ये इलीगल थी। देखें, ये देखने में ये लॉजिकली इलीगल आपको लगती है कि एक कंपनी है वो टैबलेट बनाती है, उसके पास टैबलेट सेक्शन है, उसकी सेल नहीं है, आपकी जो रिक्वायर्ड आप कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स वो नहीं बेचती, लेकिन वो पास तो आपके इदारे ने की है ना, वो आपके रेगुलेटर ने पास की है, वो ड्रैप ने पास की है, वो डीटीएल कराएगा बंदा जो भी वो सप्लाई करेगा, बेशक एक टैबलेट करेगा या 10,000 टैबलेट भी करेगा। यानी हमने यही बात की थी कि ये जो शर्त रखी गई है कि किसी कंपनी की सेल 200 करोड़ होगी तो वही कंपटीशन में आ सकती है, ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, और इसका कोई क्वालिटी के साथ इसका कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि जिन कंपनियों की 200 करोड़ की सेल है या जो भी उन्होंने वहां पे एक लिमिट रखी, इसका मतलब है जो उससे बिलो दैट लिमिट कंपनियां काम कर रही हैं उनकी दवाइयां क्वालिटी मेडिसिन नहीं है। और वो फिर ड्रैप ने क्यों अप्रूव की, डीटीएल उनके टेस्ट करता है और क्यों उनके बारे में रिपोर्टें आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी वारदात डालने के पसे पर्दा कहानी ये थी कि इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों को आउट कर दिया गया और चंद एक कंपनियां रह गई। लाहौर की सारी कंपनियां आउट हो गई टेंडर से, पिशावर की आउट हो गई, इस्लामाबाद की आउट हो गई। लेकिन जिन लोगों की सेल, कराची की चंद कंपनियां जिन लोगों की सेल के पास ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो कंपनियां ऑलरेडी कैरी कर रही थी, उन्हीं को अलाउ किया गया कि जी आप करें। दूसरी उसमें यह काम किया गया कि देखें डिफरेंट जो एमएनसीज हैं उनसे प्रोक्योरमेंट की गई कि जी क्वालिटी मेडिसिन है। अगेन वही बात है, अगर आप क्वालिटी का कोई पैरामीटर बनाते हैं तो इसका मतलब है कि जिनको आपने आउट कर दिया वो सब स्टैंडर्ड दवाइयां हैं, तो वो क्यों चल रही हैं, आप उनको फिर बंद कर दें। हमारे नाजरीन अगर अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो उनको याद होगा कि हमने ये क्वालिटी के हवाले से भी एक पूरा प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि ये क्वालिटी मेडिसिन एक ऐसा फ्रॉड है, क्वालिटी मेडिसिन का जो ढकोसला छोड़ा गया है, क्योंकि जो कोई थोड़ी अद्वियात बनाता है वो भी ड्रैप से मंजूर होती है। देखिए, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं, चेक करने के इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं, जो ज्यादा बनाता है उसके भी वही है। तो ये तो सिर्फ कंपनियों को नवाजने के लिए बनाया गया। देखें, एक कंपनी है, उसके पास सिर्फ 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, तो वो जो सेक्शन की वो उसके पास इंस्पेक्शन है, जिसकी उसके पास अप्रूवल है, वो तो उसका जिम्मेदार है ना। अब एक कंपनी है, उसके पास 35 सेक्शन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो 2 वाला है उसकी दवाई सब स्टैंडर्ड है या वो क्वालिटी में कोई लो है एज कंपेयर टू दैट वन जिसके पास ज्यादा यूनिट्स हैं। तो ये बयानिया ही गलत था। ये एक जो बयानिया घड़ा गया कि जी हम क्वालिटी के नाम पर अद्वियात खरीदेंगे, तो इसकी अगेन बार बार मैं एक ही चीज पे आ रहा हूं। इसका इफेक्ट क्या पड़ा जब ये शर्त नाफज कर दी जो कि गैर कानूनी शर्त थी 200 करोड़ रुपए की। अच्छा, बाद में खुद ये शर्त भी फिर कई जगह पे डाउन कर दी गई, 50 करोड़ कर दी गई। जहां पे 50 करोड़ भी नहीं वहां पे 25 करोड़ भी। कई फर्क इसका ये पड़ा हनीफ साहब के, देखें, एक अगर क्लिनिकल सेटिंग में एक अस्पताल में एक दवाई पूरा साल मिलती थी, फर्ज करें एक इंजेक्शन है सेफ्ट्राइऑक्सिन,
ठीक है। अगर सेफ्ट्रेक्सोन एक क्वांटिटी में खरीदा गया जो सबसे लोएस्ट कंपनी रेट ऑफर कर रही है, अगर उससे आप खरीदते, जो कि पहले 23 रुपए का खरीदा जाता था, फिर वो 79 रुपए का खरीदना शुरू हो गया। ये हमने उस प्रोग्राम में भी बाजी में भी जिक्र किया कि सेफ्ट्राई ऑक्शन जो साल हर साल तक साल का खरीदा गया, बिल्कुल अचानक उसकी कीमत 79 होगी और फिर 79 होने के साथ डॉक्टर साहब क्या हुआ कि वो लाखों करोड़ों की तादाद में खरीदी गई ये अद्वियात खरीदी गई। बिल्कुल वही बात है, एक तो बजट को इंक्रीज करते गए क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे कि जी हमें इतने यूनिट्स की जरूरत है। दूसरा ये कि अगर आप उस कंपनी से खरीदते जो आपको सबसे कम रेट दे रही थी, क्वालिटी तो आपने चेक करनी है, डीटीएल आपने कराना है, आपके रेगुलेटर के अंडर बंदा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो अगर आप उसकी दवाई खरीदते तो इसका मतलब ये था कि आप कम पैसों में पूरे साल की जितनी आपको जरूरत थी सेफ्ट्रेक्सोन की, आप वो खरीद सकते थे। आपने क्या किया, आपने यहां से स्टैंडर्ड खुद से अप कर दिया कि जी ये क्वालिटी इसकी ठीक है, इसकी खराब है सेल के हिसाब से, और आपने महंगे दामों वो चीज खरीदी जो कि आप सस्ते दामों खरीदकर एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा खरीद सकते थे, ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक वो पहुंच सकती थी। दूसरा ये हो सकता था कि आपके पैसे बच सकते थे। अब हमने तो ये 1 बाय 1 करके एक एक दवाई के बारे में बताया था कि उसमें कितनी कितनी करप्शन हुई, कितना कितना फ्रॉड हुआ, वो भी जरा नाजरीन को याद कराएं। और फिर हम जिक्र करेंगे कि ये 2015 में बजट कितना था, 16 में कितना हुआ, और उसके बाद हर साल कितना बजट बढ़ता है। देखिए 2015 तक जो शफाफ तरीके से काम हुआ, अगर आप बजट की बात करें तो बजट में डिफरेंट तरीके से आता गया। 16 करोड़ था, फिर 25 हो गया, फिर 42 अरब हो गया, ठीक है, सॉरी मैंने करोड़ बोल दिया, तो 42 अरब हो गया। फिर ये हुआ कि 3 रुपए वाली सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक क्योनोलोन है जो आप इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक, वो 3 से सीधा 10 रुपए पे जाकर खरीदी गई। 3 रुपए वाली गोली 10 रुपए में खरीदी गई। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह सच टीवी के इन प्रोग्रामों में अद्वियात की खरीद के मेगा करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ किया गया था, और अब उस पर वजीर आला पंजाब ने क्या एक्शन लिया है, इसका क्या अंजाम होने वाला है, इसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। ऐवान सच के इन प्रोग्रामों में हमने महकमा सेहत पंजाब में अद्वियात की खरीदारी में होने वाले मेगा स्कैंडल को बेनकाब किया था और बताया था कि किस तरह 2016 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पंजाब में अद्वियात की खरीदारी का सारा मैकेनिज्म चेंज किया गया। मनपसंद कंपनियों को टेंडर देने के लिए किस तरह गैर कानूनी शराइत रखी गई टेंडर्स की, और उन शराइत के नतीजे में किस तरह पंजाब के सरकारी खजाने पर अरबों रुपए का बोझ बढ़ा, किस तरह अद्वियात महंगी खरीदी गई, किस तरह कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, और किस तरह आम आदमी की पहुंच से अद्वियात दूर हुई। ये सारा मामला हमने ऐवान सच के इन प्रोग्रामों में बड़ी डिटेल के साथ उठाया था। उस पर पंजाब हुकूमत ने, वजीर आला पंजाब ने आज एक्शन लिया, लेकिन इससे पहले नैब भी एक्शन ले चुकी है, हाई कोर्ट भी एक्शन ले चुकी है। लेकिन नैब को इन सारे मंसूबा साजों ने जो इस सारी गेम के पसे पर्दा थे, उन्होंने नैब को टेक्निकलिटीज में उलझा दिया। लाहौर हाई कोर्ट को भी टेक्निकल बातें सुनाकर मामू बना लिया गया। लेकिन वजीर आला पंजाब को जब इस मामले में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई तो सारी चाल उनकी समझ में आ गई, और उस चाल के समझ में आने के बाद उन्होंने इस पर एक बड़ा इनकलाबी कदम उठाया। ये कदम क्या है इसका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने नाजरीन को जरा याद करवा दें कि हम किस तरह इस मौजू पर मुसलसल प्रोग्राम करते रहे, मुसलसल ये मामला उठाते रहे, और बिल आखिर वजीर आला पंजाब को बात समझ में आ गई। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने कहा कि गैर कानूनी शराइत रखी गई, कंपनियों को आउट किया गया, इसी तरह पंजाब असम्बली से ऐसे कवानीन पास करवा लिए गए जिनसे मैन्युफैक्चरर्स को डराया धमकाया गया, खौफजदा किया गया कि अगर ये हो गया तो सजाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, ये चीजें हो जाएगी। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिसके नतीजे में मैन्युफैक्चरर्स पीछे हट गए और चंद ये जो मंसूबा साज थे उनको खुल खेलने का मौका मिला। तो उस खुल खेलने के नतीजे में किस तरह अद्वियात महंगी हुई, जरा मुझे बताइए कि हमने कौन कौन सी दवा का जिक्र किया था जो महंगे दामों लेगी। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप पेन किलर जो है ना डाइक्लोफेनिक की अगर हम बात करें, जो इंजेक्शन है 2009 से 2015 तक 1.60 पैसे में खरीदा गया। 1 रुपए 60 पैसे, 1 रुपए 60 पैसे में, ठीक है। 15 तक ये मैं 15 तक इंजेक्शन की बात कर रहा हूं। और एकदम से इस टीके की जो प्राइस है वो 5.90 रुपए हो गई, यानी तकरीबन 6 रुपए, तकरीबन 6 रुपए हो गई। अब आप मुझे ये बताएं, जबकि यही दवाई जो है वो अगर गवर्नमेंट
रेट आपको पता है कि कितना रेट बढ़ना था। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आम आदमी ये सोचता है कि चले 1 रुपए से ये 6 रुपए तक ये 4-5 रुपए का ही फर्क है, वैसे लगता है कि इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन जब ये ह्यूज क्वांटिटी खरीदी जब जाती आप है पूरे आप तो एक फिर ये सूबे का इसमें बजट एक डिक्लोफेनेक में मेरे ख्याल 70 करोड़ 70 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो एक दवाई में पहुंचाया गया। आपको मैं ये भी बता मामला भी दूं, हमने उठाया था, हमने ये बार बार बताई थी बात कि एक दवा की खरीदारी में, एक टीके की खरीदारी में 70 करोड़ रुपए की करप्शन। आगे आप देखेंगे जो पैरासीटामोल सस्पेंशन है, अगर हम 60 ml की बात करें, 2009 से 2015 तक 6.60 रुपए फी बोतल खरीदा गया। 6.60 बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये वाला पेपरा वाला रूल और ये चीजें तरमीम की गई, उसके बाद यही वाली दवाई 14.67 रुपए फी बोतल खरीदी गई और 6 रुपए से 14 रुपए। और एक चीज 15 रुपए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हैरान कौन बात यह है कि इस दवाई के सैंपल भी जो DTL में है वो फेल हो गए। अच्छा, यानी सैंपल भी फेल हो गए, कंपनियों से क्वालिटी के नाम पे खरीदी गई, वो भी फेल हो गए। और आप मुझे ये बताएं कि इसी दवाई की खरीदारी में कम से कम 70 करोड़ रुपए का सीधा सीधा टीका लगाया गया, कम से कम। तो आप खुद ये अंदाजा करें, अगर हम आगे चले, ओमेप्राजोल एक PPI है जो आप, अच्छा, ये नैब के पास जब ये केस गया तो नैब ने तो अपना जो सरकारी लामिया था, जो लेटर था, जो मुख्तलिफ शख्सियात को लिखा, उन शख्सियात को जो इस सारी खरीदारी में, सारी करप्शन में जो मुलव्वस थी, उनको जो तलबी के परवाने जारी किए गए थे ना, तो उसमें नैब ने 20 अरब रुपए की करप्शन का जिक्र किया 20 अरब। हालांकि हमने जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हैं उसमें कम से कम 42 अरब रुपए की करप्शन है। लेकिन नैब तो वो 20 अरब की भी प्रूफ ना कर सका, वो भी इन्होंने टेक्निकलिटीज में उलझा के रख दी। वो इसीलिए ना, आप देखिए ओमेप्राजोल जो है 20 mg जो कैप्सूल है, मैं आपको पहले मिसाल दे रहा था, वो 91 पैसे का खरीदा जाता था एक कैप्सूल, 91 पैसा का। जी बिल्कुल। और वही वाली दवाई 91 पैसे से सीधे आप 9 रुपए 29 पैसे पे चले गए। डॉक्टर साहब एक दफा फिर बताइए कि ये 2016 में बजट कितना था अद्वियात की खरीदारी? देखें 2000 पहले बजट था आपका 16 अरब, 16 अरब, फिर आपने 25 अरब किया। 16 अरब में अद्वियात पंजाब के लोगों को सरकारी अस्पतालों में मिलती, सरकारी अस्पतालों में मिलती थी और पूरा साल मिलती रहती थी। अब आप देखें, अभी 6 महीने नहीं हुए बजट को, और अभी से आप देखें कि बाज अद्वियात 16 अरब के बाद अगले साल कितना, उसके बाद 25 हो गया, 25 के बाद फिर ये 60 अरब हो गया, और 60 से बढ़ता हुआ मैं आपको बताऊं सीधा इन्होंने तकरीबन जो बजट है ना उसमें मतलब जो कम से कम 300% इजाफा किया गया। अच्छा, दूसरी जो बात हमने इन प्रोग्रामों में जिक्र की थी वो ये थी कि 2016 से पहले जो सिस्टम चल रहा था वो भी शहबाज शरीफ का ही दौर था। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आला थे, इनके दौर में ही ये टेंडर, ओपन टेंडर के जरिए खरीदारी होती थी और ये सबको अद्वियात मिलती थी सस्ते दामों, हुकूमत का भी कम पैसा लगता था। ये 16 में जो कुछ हुआ ये भी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ। अगर उन्होंने बाद में ये महंगी अद्वियात खरीदी हैं, अगर उनकी बात मान ली जाए कि क्वालिटी के नाम पे उन्होंने महंगी अद्वियात खरीदी है, तो पहले फिर वो उन्होंने गैर मेयारी अद्वियात खरीदी थी। वही बात है, पहले गैर मेयारी खरीदी थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो पैसे रिफंड करें उनसे करें। आप देखें, गैर मेयारी या मेयारी अद्वियात महंगे दामों खरीदी है, बिल्कुल, और उनका रिजल्ट भी वही है जो पहली वाली अद्वियात का रिजल्ट है। क्वालिटी के नाम पे खरीदी गई दवा का सैंपल DTL में फेल हो जाता है। आप मुझे ये बताएं। दूसरी बात ये है कि जब आप पहले इतने टाइम से ये काम चल रहा था, पेपरा रूल्स थे, सारी चीजें थी, टेंडर होता था, ओपन टेंडर होता था, सेल्स की कोई उसमें वो नहीं थी। कोई बंदा भी जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जाता था और जाके अपना रेट कोट करता था और अपनी क्वालिटी तो आपने DTL ने देखनी है, उसको असेस करना है, तो उसके बाद आपने जिस तरह आप ये कह रहे कि ये सारा एक माफिया था जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, ये चंद लोग थे जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये तजवीज़ दी कि महकमा सेहत से बड़ा माल कमाया जा सकता है और उसके लिए ये जो गैर कानूनी शराइत है उन्होंने ये सारा मंसूबा पेश किया और क्वालिटी के नाम पे डंडोरा पेट कर ये सारा प्लान अप्रूव करवा लिया। पसे पर्दा कहानी थी चंद कंपनियों को नवाजने की। हमने तो यहाँ तक कहा था कि ये जिन कंपनियों ने ये टेंडर में हिस्सा लिया है, जिन्होंने ये अद्वियात दी हैं, आप उनके अकाउंट चेक करें, बिल्कुल, और उन अकाउंट से वापस जिन जिन अकाउंट्स में रकम की गई है आप वो चेक करें तो सारी आप वो अकाउंट चेक कर लें। जो कंपनियां जिनको आउट किया गया था, जिन्होंने रेट कोट किया था, वो आप रेट चेक कर लें, आपके होश उड़ जाएंगे कि अगर एक बंदा एक चीज आपको दे रहा है, जी मैं 5 रुपए में देता हूं, और वही चीज आप दूसरी जगह से 15 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 वाली भी आपने अप्रूव की है, 15 वाली भी आपने अप्रूव की, अगर वो रेट आपको सस्ता दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दवाई जो है वो सब स्टैंडर्ड है। तो अगर सब स्टैंडर्ड है तो आप उसको बंद कर दें, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसीलिए ये प्रॉपर इन्होंने एक प्लान बनाया कि जी अब हम क्वालिटी मेडिसिन वाला ये जो डंडोरा है वो पीटते हैं, और पीटने का नुकसान ये हो, एक तो लोगों ने माल बनाया,
बजट में एक्सटेंड इन्होंने किया, बजट एक्सटेंड किया, बजट एक्सटेंड करने के साथ साथ ये नुकसान हुआ आम आदमी को कि अभी साल नहीं पूरा हुआ और अद्वियात जो है वो वहां पे खत्म हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चंद लोग थे उस वक्त बड़े अहम ओहदों पर फायज थे महकमा सेहत में, वो चंद लोग अभी तक उन्हीं सीटों पे बैठे हुए हैं। देखें यही वजह है कि जिस लेटर की आपने बात की उसके ऊपर भी हम आएंगे, उस लेटर की के इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह यह कि आज कितना टाइम हो गया, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया कि एक चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है कि जी आप सिंगल एक जो है ना एसओपी बनाएं जिसमें अब इस लेटर का हम जरा जिक्र करते हैं जिसमें कि ये सारा सिनेरियो जो हमने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डिस्कस किया, आज हमने उसको जरा रिपीट किया ताकि नाजरीन को समझ आ जाए, बात याद आ जाए कि हम ऐवान सच में सच टीवी पे क्या वावेला करते रहे और किस तरह एक सरकारी सतह पे जो बड़ा डाका डाला गया अवाम की जेबों पर, उसका हम जिक्र करते रहे और उसमें मुलव्वस किरदारों का, उन लोगों का हम जिक्र करते रहे और फिर नैब को भी बेवकूफ बनवा लिया गया, फिर हाई कोर्ट को भी कर लिया गया। अब वजीर आला पंजाब ने जब ये सारी ब्रीफिंग ली, उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने ये लेटर लिखा। अब ये लेटर क्या है? लेटर के ऊपर मैं आता हूं। लेटर का जो वो ये है कि जी सिंगल हेल्थ मेडिसिन इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट प्लान। इस लेटर पे बाद में बात करते हैं, पहले एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद नाजरीन इस खत का जिक्र करेंगे जिसमें वजीर आला पंजाब ने महकमा सेहत को हदायत जारी की हैं, डायरेक्शंस दी हैं। ये डायरेक्शंस ही नहीं, ये एक एतराफ़ भी है। ये एतराफ़ है कि वाकई गुज़श्ता सालों में सरकारी ख़जाने पर महकमा सेहत में बड़े पैमाने पर करप्शन की गई, जिसकी वजह से वो कवायद व ज़वाबत तब्दील किए गए और एक नया हुक्मनामा जारी किया गया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, बड़ी तफसील से मेरे साथ रहिएगा। ये नाजरीन ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है महकमा सेहत में होने वाली मेगा करप्शन की और उस पर वजीर आला पंजाब के नोटिस की। डॉक्टर साहब अब जिक्र करते हैं हम उस लेटर का जो वजीर आला पंजाब ने लिखा है। ये लेटर एक तो एतराफ़ है इस बात का कि जो बातें सच टीवी पे हमने की थी ऐवान सच में वो बिल्कुल ठीक थी। बिल्कुल वाकई सरकारी खजाने को महकमा सेहत में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। महंगी अद्वियात खरीदी गई हैं, मनपसंद कंपनियों से खरीदी गई हैं। उसके बाद अद्वियात की खरीदारी के शफाफ निज़ाम को डर्टी किया गया, उसके अंदर गैर कानूनी शराइत रखी गई जिसकी वजह से बड़ी ऐसी कंपनियां आउट हो गई जो अगर टेंडर में इन होती तो अद्वियात की कीमतें कम हो सकती थी। इस बात का एतराफ़ सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कर लिया। अब ये जरा लेटर आप बताइए कि इसमें मजीद क्या। एक तो मैं अगर इसकी लेटर की आप डेट देखें 13 सितंबर 2021 को लेटर लिखा गया है और ये लिखा गया है प्राइमरी सेकेंडरी जो हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन है पंजाब, उसको ठीक है आप सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर, सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, पैसी जो है जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स हैं, और पेपरा जो है उसके एमडी को लिखा गया जो ये सारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है उसको रेगुलेट करता है, और एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को इस पे फॉलोअप के लिए भी लिखा गया है जिसका फॉलोअप भी दिया आपने इसका फॉलोअप दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उनको पता लग गया कि इसमें क्या है। अब मैं आता हूं इसके सब्जेक्ट की तरफ। अगर आप इसका उन्वान देखें तो इसमें लिखा हुआ कि सिंगल हेल्थ मेडिसिन इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट प्लान, ठीक के तमाम कंपनियों के लिए जो सर्टिफाइड हैं, जिनको अप्रूवल है, जिनके पास जो लाइसेंस याफ्ता कंपनियां हैं, उनके लिए आप एक सिंगल प्लान बनाएं। यानी ये उस टाइटल ही इसका चीफ टाइटल ही चीफ का इस बात की एतराफ कर रहा है कि जो पहले काम था उसमें इम्तियाज बढ़ता गया, उसमें करप्शन की गई, उसमें चंद एक कंपनियों को नवाजा गया। अब आप क्या करें कि जितनी कंपनियां हैं सर्टिफाइड, आप उन सारी कंपनियों के लिए एक सिंगल प्लान बनाएं प्रोक्योरमेंट का। नंबर इसका मतलब वो जो 200 करोड़ रुपए की शर्त थी वो गैर कानूनी थी। उसकी वजह यह है कि आप किसी को नहीं कह सकते, अगर आपको किसी के पास सिर्फ एक टैबलेट बनाने का लाइसेंस है कि वो टैबलेट सेक्शन चलाएगा तो उसकी सेल कैसे 2 करोड़ 200 करोड़ होगी या जितनी भी आपने लिमिट रखी जिसको आपने किया। अब मैं पढ़ता हूं, प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। चीफ मिनिस्टर हैज डिजायर्ड दैट ऑल बल्क मेडिसिन इक्विपमेंट प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट्स लाइक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेपरा और जो पैसी के हॉस्पिटल हैं उनको constitute a joint commission under Secretary Specialized Healthcare and Medical Education to discuss, formulate. अब आप आगे जरा सुनिएगा, formulate a single bulk medicine equipment procurement plan for the departments, ठीक है, following are the TORs for the committee. अब इसमें जो इतराफ किया गया है कि आपने एक तो फॉर्मुलेशन करनी है सिंगल प्लान की, ठीक है, सब कंपनीज के लिए यकसा प्लान हो
आफ्टर एग्जामिनिंग द एंड आइडेंटिफाइंग द लूप होल्स इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक, ये वो बात है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो लूप होल्स हैं उनका मुआयना किया जाए, बिल्कुल, उनको बंद किया जाए, उन लूप होल्स को देखा जाए, उनको एड्रेस किया जाए और एक सिंगल प्लान बनाया जाए सारी कंपनी के लिए। मतलब है ये एडमिट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव की सतह लूप होल्स हैं, ये लूप होल्स हैं, लेकिन मैं इस चीज का एतराफ करूंगा कि अगर इस पे अमल हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छी काविश होगी। इससे एक तो अद्वियात की दस्तयाबी सरकारी अस्पतालों में बढ़ जाएगी, जितने पब्लिक सेक्टर आपके इंस्टीट्यूशन उनमें। दूसरा ये होगा कि कौमी खजाने का अरबों रुपया बच जाएगा। अच्छा, अब इस लेटर पे आगे आते हैं कि एक तो आपने कहा कि अमल दरामद हो जाएगी, कब का लिखा हुआ है? देखें, ये 13 सितंबर का लेटर लिखा हुआ है और इसकी वही वजह जो अभी आप कह रहे थे, जिन लोगों ने नैब को मामू बना दिया, जिन्होंने हाई कोर्ट को मिसगाइड किया, आजकल भी अगर आप देखेंगे वही के वही लोग इन्हीं डिपार्टमेंट्स में बराजमान है। तो इस पे अमल कैसे होगा? एक तो ये बात वज़ीर आला साहब के लिए चैलेंज ये है, चैलेंज है, बिल्कुल ये चैलेंज है, समझ में आ गई है, सारी कहानी उनके समझ में आ गई है, बिल्कुल, और उन्होंने डायरेक्शन भी जारी कर दी है। अब अगला काम यह है कि अगर वज़ीर आला साहब ये कर पाते हैं कि उन लोगों को जो इस लेटर की इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट कर रहे हैं उनको हटाया जाए, उनका एहतसाब किया जाए, तो फिर इस पे इम्प्लीमेंट होगा। अब हम इसके अगले सेक्शन पे आते हैं। लिखा हुआ है devising benchmarks to encourage participation of small to medium entrepreneurs in order to end जो माफियाज, जो हम कार्टेलाइजेशन की बात करते थे, एलिमिनेशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। ये करप्ट प्रैक्टिस, ये लफ्ज दोनों माफिया का और करप्ट प्रैक्टिस का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। यानी इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि हम जो माफिया कहते रहे, हम जो करप्ट माफिया कहते रहे, उस बात का एतराफ हो गया, सरकारी सतह पर उसका एतराफ हो गया, किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, हमने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसकी बात की। अब ये कहा गया कि आपने ये जो एक आगे रोड ब्लॉक्स लगाए हुए कंपनीज के लिए कि जी इतने की सेल होगी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हालांकि हो सकता है कि वो बंदा सब कंपनियों से आपको सस्ती दवाई दे। चेक आपने करनी है, अप्रूव आपने किया है, पेमेंट आपने करनी है, आपके इदारे हैं, आपकी चीजें हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, बिल्कुल सही बात है, इंस्पेक्टर्स हैं, ये सारा का सारा मैकेनिज्म आपका, ये सारा मैकेनिज्म आपका है। अगर कोई बंदा काउंटरफीट दवाई बना रहा है और वो सस्ते रेट पे दे रहा है तो आप उसको चेक करें, उसको बंद करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो इसमें यह है कि जी आपने बेंचमार्क बनाने हैं सो दैट जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनको कहना चाहिए जिनके पास कम सेक्शंस हैं या जिनकी सेल कम है बट दे आर सर्टिफाइड या अप्रूव्ड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी इसमें तो आ ही नहीं सकता, इसमें रैप का अप्रूव नहीं है, वो तो नहीं आ सकता। अच्छा, तो इसमें इन बातों का एतराफ भी किया गया, इनको माना गया। अब अल्लाह करे कि इस पे अमल हो जाए, और अगर अमल होगा तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जी ये सारी की सारी जो ये जो लेटर लिखा है, अब इसके दो पोर्शन है, अगला भी इसका एक पोर्शन है जी, वो एक तीसरा ये है कि टू डिवाइस एंड सजेस्ट वेज टू स्ट्रीमलाइन ई प्रोक्योरमेंट। अब एक और काम है, पेपरा इसमें आता है, रेगुलेटर है, टेंडर जारी होते हैं, मैनुअल तरीके से काम होता है, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं कि आप जो ई प्रोक्योरमेंट है बल्क मेडिसिन की वो करें, और आपने अगेन लिखा गया आफ्टर स्टडिंग एंड एग्जिस्टिंग लूप होल्स इन ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है, एंड पे लिखा गया चीफ मिनिस्टर हैज फर्दर डिजायर्ड दैट रिकमेंडेशन ऑफ जॉइंट कमीशन मस्ट रीच चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स विद इन 2 वीक्स। अब आप मुझे ये बताएं कितने हफ्ते हो गए इस चीज को? महीने से ज्यादा हो गया। यहाँ पर टाइमलाइन लिखी हुई है, मुझे आप बता दें अगर किसी ने कोई जो है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक इसको परसू तो किया जा रहा है, वो माफिया है, परसू होगा, करेंगे। चैलेंज ये कि बॉस माफिया का चैलेंज, ये मैं तो चैलेंज की आप बात करते हैं, ये तो मैं बहुत बड़ा चैलेंज इसको कहता हूँ, क्योंकि ये परसू होगा और अगर ये डिसाइड हो गया है तो फिर इसके परसूअल में देखेंगे कौन कौन रुकावट है। अच्छा, दूसरी ये चीज, एक तो ये है कि फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ये हो गया कि प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसको इस डायरेक्शन की रूह से उस पे इम्प्लीमेंट किया जाए। एक चीज ये है कि जिन्होंने इतनी बड़ी करप्शन की, इतने साल 42 अरब रुपए की करप्शन हुई, उनका एहतसाब भी तो होना चाहिए, बिल्कुल उनसे रिफंड होने चाहिए, पैसे एहतसाब होना चाहिए, से महंगी दवाई दी गई है उनसे रिफंड किया जाए पैसा, ये भी बात है। उसी के लिए जब ये लूप होल्स बनेंगे, कोई रिपोर्ट बनेगी तो उस रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा कि इसमें ये लूप होल्स थे। ठीक है, हम जो इतने टाइम से एक चीज शोर मचा रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि जी नैब को भी आपने पागल बना दिया। अब नैब वाले जो है वो कम से कम एक जो टेक्निकल बंदा है ना, वो नैब को तो आसानी से कह सकता है कि ये 2 + 2 4 नहीं, 2 + 2 22 है। क्वालिटी मेडिसिन के नाम पे अगर आप बनाते हैं, दूसरी बात ये है कि आपके पास बजट है और आप ब्रांड्स के नाम पे अगर महंगी अद्वियात खरीदते हैं तो इसमें भी आप कंपनियों को नवाजते हैं। जो जेनेरिक मेडिकेशन है, जो नेशनल कंपनीज हैं, या मैं नेशनल मल्टीनेशनल को छोड़ता हूं, जब आपने एक चीज खरीदनी है आप टेंडर करते हैं, जो बंदा सबसे कम रेट भी उसमें कम रेट भी आपके पास सबसे कम रेट देगा आप उससे प्रोक्योर करें। और अगर अब प्रोग्राम का आखिरी लम्हा है, आखिरी 1 मिनट है,
تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک تو اس لیٹر کا یہ ہے کہ آئندہ سے تمام کمپنیز کو کسی بھی ڈسکریمنیشن کی بنیاد پر اور کسی کو آؤٹ نہ کیا جائے اور ان کے لیے یکساں پالیسی نافذ کر دی گئی ہے کہ وہ ٹینڈر میں حصہ لیں, جو کم ریٹ دے اس کی دوائی خریدی جائے. اور جن لوگوں نے مہنگے داموں ادویات خریدی ہیں اور جنہوں نے دی ہیں ان دونوں کا احتساب کیا جائے اور ان سے پیسے ریفنڈ کیے. ایک اس لیٹر سے جڑی ہوئی چھوٹی سی اور بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جو آپ کا منظور شدہ بجٹ ہے آپ نے اس میں مہنگی دوا خریدی, وہ دوا 9ویں مہینے 10ویں مہینے جا کے ختم ہو گئی, اس کے بعد ایک نیا آپ کے پاس کام شروع ہوتا ہے ایل پی کا. وہ ایک میں تھوڑا سا اس کا آپ کو اوور ویو دوں گا. ایک دوائی ایک کمپنی سیم جنیرک ایک اسپتال میں اگر 3 روپے کی ہے, دوسرے میں آپ نے 15 روپے کی. اس پر ایک اور پروگرام کریں گے, یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. وجہ اس کی یہی ہے, اس کے پیچھے یہی کاز ہے, یہ بھی انہی کمپنیز کی دوائی تھی, انہی کمپنیز کا یہ طریقہ کار تھا کہ یہاں ختم ہو جائے گی, ختم ہونے کے بعد پھر ایل پی کا کام آئے گا. لیکن آج جو واردات ہے وہ اگلے پروگرام میں کریں گے. فی الحال تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعی ایک بڑا سیریس ایکشن لیا ہے, بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے, بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے یہ جو فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا اس پر امپلیمنٹ ہو, اور امپلیمنٹ کے نتیجے میں جہاں مستقبل میں شفاف خریداری ہو, وہاں ماضی میں جن کرپٹ لوگوں نے کرپشن کی ان کا احتساب کیا جائے, ان سرکاری ملازمین کو عہدوں سے ہٹایا جائے, اور ان کمپنیز کو جنہوں نے مہنگے داموں ادویات دی ان سے پیسے ریفنڈ کیے جائیں. اس اچھی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.